Good afternoon, my dear kids. We are back again today to read about your lesson Magic Words. Okay, we are dealing with English class 4 and we are reading your third lesson Magic Words. You remember we took in the last class we spoke about Kabir, Mithi and Ekta having a conversation amongst them. अपने आप के अपने बीच में बात कर रहे थे. आपको याद है? Very good. So, today we are going to continue to read about the magic words. What were the magic words we spoke about last time? We read about excuse me, thank you, welcome, sorry, प्लीज एंड पार्डन. वी नो व्हाट इज एक्सक्यूज मी राइट ना बच्चों. अगर आप स्नीज करते हैं या किसी के कॉन्वर्सेशन के बीच में आप अगर बात करने की कोशिश कर रहे हैं और you want to enter the class when the class is ongoing, you say excuse me ma'am, excuse me sir, excuse me Ria, excuse me Preeti, whatever is it, you have to use the word excuse me. When do you use thank you? You use thank you when you are someone has helped you, so you say thank you. If somebody asked you a question, फॉर एग्जाम्पल, कैन यू टेल मी वेयर इज द क्लास, क्लास कहाँ है, हमारा जो क्लास है वह कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे? द क्लास इज ओवर देयर इन द राइट कॉर्नर, प्लीज गो स्ट्रेट. You will tell like that. So when you tell like that, the other person will say thank you, क्योंकि आपने उनकी मदद की तो वो आपको कहेंगे थैंक यू कहेंगे. और आप उनको क्या कहेंगे? व्हाट वुड यू टेल देम? यू वुड टेल देम वेलकम. When somebody says thank you, you say welcome. Welcome you can use in two scenarios. दो जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं. पहला जो welcome आप यूज कर सकते हैं वह जब कोई आपको thank you कहे तब आप welcome कह सकते हैं. दूसरा जगह जब आपको किसी को स्वागत करना है, someone is entering your house or someone is coming to your school to pay a visit, you say welcome. स्वागत है, आपका स्वागत है, आदरणीय स्वागत है, तो आप क्या करेंगे? वेलकम करेंगे. व्हाट वी डू? वी वेलकम देम. So we understood about the three magic words. Now we are going to understand the word sorry. आपको तो पता है sorry का अर्थ क्या है. sorry का अर्थ है क्षमा मांगना. जब आप कोई गलती कर बैठे तो आप क्या कहेंगे? You say sorry. What do you say? You say sorry. Okay, kids? So you've understood the four magic words. When do we use please? When did Kabir use please? जो हमारे जो स्टोरी में है, कबीर ने कब प्लीज कहा? कबीर ने प्लीज तब कहा जब he wanted Mithi's notebook. So what he did, he said, can you please, would you please give me your notebook? What did Kabir say? Would you please give me your notebook? थोड़ा दे पाएंगे, कृपया दे पाएंगे. So that is the meaning of please. It is also a beautiful magic word, kid. It's a very beautiful magic word. Okay, now we learn about another magic word which is pardon. Pardon can be little tricky, यानी कि याद रखने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, परंतु बहुत काम की चीज है पार्डन. अगर आपको किसी को कहना है आपने जो बोला मुझे समझ में नहीं आया, वॉट यू सेड आई डिडंट अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज रिपीट इट. जो आपने मुझसे कहा मुझे समझ में नहीं आया, आप वापस दोहरा पाएंगे? जो हम ऐसे पूछते हैं ना बच्चों, उसके लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्डन. जब हम अनुरोध करते हैं ना बच्चों, अनुरोध माने क्या? जब हम पूछते हैं आप प्लीज वापस बता पाएंगे, मुझे समझ में नहीं आया मैम, आप वापस दोहरा पाएंगे, कैन यू रिपीट इट, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या बोलेंगे? पार्डन कहेंगे. तो इतना बड़ा सेंटेंस बोलने के बदले आप सिर्फ पार्डन कह सकते हैं. ठीक है, तो उसका अर्थ क्या है? इसका मतलब आप प्लीज दोहराइए, मुझे समझ में नहीं आया. वो अनुरोध करने का मैजिक वर्ड है पार्डन. तो मेरे प्यारे बच्चों को अभी मैजिक वर्ड सब आ गया. कितने मैजिक वर्ड आ गए मेरे प्यारे बच्चों को? 6 मैजिक वर्ड्स आ गए. कितने? 6 मैजिक वर्ड्स आ गए. क्लैप फॉर योरसेल्फ. वेरी गुड. Okay, we have done a revision about the 6 magic words we learned, but we are yet to finish the lesson. So let's finish the lesson today. Yes, come on everybody, let's finish the lesson. Okay, so what I'll do here first is I'll put this a little above so we have more space to write. यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है.
Okay. So we have going to read magic words of English class 4. Okay, kids, let's do this. Come on. So what did we learn in the last class? क्या सीखा था हमने बच्चों पिछले क्लास में? चलो मैं बताती हूँ हमने क्या कहा था मॉर्निंग असेंबली खत्म हो गया था द मॉर्निंग असेंबली वाज ओवर द बेल रिंग्स फॉर द मॉर्निंग असेंबली आफ्टर द असेंबली मीठी एंटर्स द क्लासरूम कहाँ आ रही है मीठी क्लासरूम में तो ये जो बातचीत हो रही है कहाँ पे हो रही है क्लासरूम में हो रही है और क्या होता है मीठी एंटर होते ही क्या करते हैं कबीर सेज हेलो मीठी मीठी सेज हेलो कबीर हाउ आर यू तो कबीर क्या कहते हैं थैंक यू मैं क्लास में नहीं आया था I was absent, so I could not do my homework. Would you please give me your notebook? So Kabir is asking for a notebook from Meethi. So what does Meethi say? She says the word please. Okay, so Kabir said thank you and then he said, would you please give me your notebook? So Meethi said, oh sure, please take it. So जब आपकी मदद की गई थी when Meethi helped Kabir, so what was the magic word that Kabir used? He used thank you. When he said thank you Meethi. Then when thank you was told to Meethi, what did Meethi say? Welcome. Did you see how they used the magic word? आप लोगों ने देखा था कि magic word कैसे इस्तेमाल किया था? Very good. तो ये दोनों कबीर और मीठी आपस में बात करते वक्त एकता came and told excuse me what did she use the word excuse me is this your box क्या ये आपका बॉक्स है is this your box करके एकता asked but why did she use excuse me का इस्तेमाल एकता ने क्यों किया why did she use it because कबीर and because Kabir and Meethi were talking amongst themselves आपस में बात कर रहे थे तो एकता ने कहा excuse me is this your box मीठी so मीठी ने कहा yes it is mine so एकता ने फिर क्या किया एकता ने क्या किया उन्होंने कहा would you please show me your story book तो एकता ने वापस कौन सा मैजिक वर्ड यूज किया प्लीज यूज किया तो मीठी ने क्या बोला उसके लिए पता है मीठी ने कहा पार्डन व्हाट डिड मीठी से पार्डन पार्डन क्या कर अर्थ क्या है मुझे समझ में नहीं आया आप प्लीज मुझे दोहरा के बता सकते हैं उसका अनुरोध किया तो मीठी सेड पार्डन सो एकता सेड अगेन एकता ने वापस दोहराया वुड यू प्लीज शो मी योर स्टोरी बुक सो दिस इज व्हाट वी लर्नड इन द लास्ट क्लास नाउ वी आर गोइंग टू read more on it okay come on now let's go to the conversation further ठीक है now ekta said would you please show me your storybook so what did Mithi say let's find out मीठी के लिए एम डाल रही हूँ बच्चों मीठी के लिए एम डाल रही हूँ सो मीठी सेज यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स का मतलब क्या है जरूर यस ऑफ कोर्स वेर तो क्या कहा स्टोरी बुक मांगा किसने एकता ने मांगा व्हाट डिड एकता आस्क शी आस्क्ड फॉर अ स्टोरी बुक एंड व्हाट डिड मीठी से फॉर दैट यस ऑफ कोर्स वेयर इज माय पिक्चर बुक वेयर इज माई पिक्चर बुक एकता तो सवाल पूछ रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है वेन एवर यू आर आस्किंग फॉर अ क्वेश्चन सो यू पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर वेयर इज माई पिक्चर बुक एकता तो आपने देखा वेयर का मतलब क्या है कहाँ पिक्चर बुक यानी कि जो चित्र चित्र होता है ना उनका वो बुक वेयर इज माई पिक्चर बुक एकता से मीठी ने पूछा तो एकता ने क्या जवाब दिया देखें हम एकता ने कहा एकता ने कहा आई एम सॉरी व्हाट डिड शी से आई एम सॉरी व्हाट डिड शी से आई एम सॉरी सॉरी इज अ magic word I am sorry I left it at home
घर पे मैंने छोड़ दिया। आई विल ब्रिंग इट टुमारो। टुमारो मतलब कल। आपने देखा, हम जब हिंदी में कल बोलते हैं तो एस्टरडे का मतलब भी कल होता है। अगर अगले दिन के बारे में बात करें तो हम टुमारो के लिए भी कल कहते हैं। सो आई विल ब्रिंग इट टुमारो का मतलब भी है मैं कल ले आऊंगी। ठीक है। तो डिड यू सी एकता सेड आई एम सॉरी, क्यों कहा? क्योंकि वो भूल गई। मीठी का बुक लेके गई, शी टुक मीठीज बुक बट शी डिडंट गिव इट बैक। तो when मीठी asked she said I am sorry I left it at home, मैं कल ले आऊंगी। whenever you borrow things, बोरो मने उधार लेना। जब भी आप बोरो करते हैं कोई भी चीज को, तो आप क्या करेंगे? आप बोरो करेंगे तो आप क्या करेंगे? पहले आप उसको रिटर्न करने के लिए सब चीज देखेंगे। ठीक है। उधार जब भी आप कुछ लेते हैं, आप वापस आपको देना चाहिए। ठीक है। तो आपको वह चीज याद रखना चाहिए। ठीक है बच्चों। वेरी गुड। नाउ मीठी एंड एकता वर टॉकिंग, देन रवि केम इन। रवि आके बोलते हैं, रवि। ठीक है। तो रवि इज सेइंग एस्टरडे। देखिए, टुमारो का भी अर्थ कल होता है एंड एस्टरडे का भी अर्थ कल होता है। एस्टरडे आई मेड अ मिस्टेक। आई मेड अ मिस्टेक। तो उसका अर्थ क्या है? कल मैंने एक गलती कर बैठी। क्या गलती कर बैठी? आई अप रूटेड, अप रूटेड अ न्यू सैपलिंग। सैपलिंग का अर्थ होता है जो नया पौधा है, छोटा पौधा होता है, ये होता है सैपलिंग का अर्थ। क्या होता है सैपलिंग का अर्थ? जब नया पौधा, ऐसे एक पौधा होता है, इसको क्या होते हैं? उसके पत्ते होते हैं, जड़ होते हैं, रूट होते हैं, उसकी तना होती है। तो ये जो नया, जब भी हम बीज बोते हैं, उसके बाद छोटा सा एक पौधा निकलता है, उसको कहते हैं सैपलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सैपलिंग कहते हैं। तो उस इन्होंने क्या कहा? आई अपरूटेड। अपरूटेड माने रूट का अर्थ क्या है? जो हमारे जड़ है। तो ये जो रूट है उसको उखाड़ दिया। तो गलती से उखाड़ दिया तो क्या हो गया? तो ये जो रूट है उसको बाहर निकाल दिया। आई अप रूटेड। रूटेड पास्ट टेंस है ना? तो अप रूटेड, रूट का मतलब इसको, इस रूट को ऊपर खींच दिया, उखाड़ दिया, तो अप रूटेड आ गया। ठीक है बच्चों। तो व्हाट डिड रवि डू? He said, I made a mistake. I uprooted a new sapling. You understood what a sapling is? So, what he was saying, what would the teacher say? अभी मैडम क्या कहेंगी? व्हाट वुड द टीचर से? अध्यापिका या अध्यापक क्या कहेंगे? ठीक है। तो व्हाट वो हैपन? रवि मेड अ मिस्टेक एस्टरडे। ही अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग। सैपलिंग यानी कि छोटा पौधा, यानी कि इस प्रकार जो छोटा पौधा है उसको सैपलिंग कहते हैं। अपरूटेड का माने पौधे को जड़ से उखाड़ना। अपरूटेड का अर्थ होता है पौधे को जड़ से उखाड़ना। ठीक है। और सैपलिंग का जो अर्थ है, उसका अर्थ है छोटा पौधा। सो अभी रवि को क्या डर है? व्हाट इज द वो फियर इन रवि? व्हाई इज ही सैड एंड स्कैर्ड? व्हाट ही इज सेइंग? आई अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग। व्हाट वुड द टीचर से? टीचर अभी क्या कहेंगे? तो उसको डर है। ठीक है बच्चों। सो व्हाट डज मीठी से फॉर दैट? लेट्स फाइंड आउट। मीठी कहती है, मीठी सेज our, हमारी टीचर इज वेरी काइंड। काइंड यानी कि दयालु। our टीचर इज वेरी काइंड। इफ यू से, इफ यू से सॉरी, इफ यू से सॉरी, सॉरी यानी कि क्षमा मांगने पर, इफ यू से सॉरी
टू हिम, अगर देखिए अभी हमें पता चल गया कि अध्यापिका के बारे में बात कर रहे हैं कि अध्यापक के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, आवर टीचर इज वेरी काइंड, से सॉरी टू हिम। हिम यानी कि हिम कब यूज करते हैं? जब एक आदमी के बारे में बात करते हैं ना, ही हिम सब, ही हिम और हिस, ही हिम और हिस हम कब उपयोग करते हैं? जब हम एक आदमी के बारे में बात करते हैं। और जब हम एक औरत के बारे में बात कर रहे हैं, एक लेडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं पता है? ही के बदले शी, हिम के बदले हिस, के बदले हर। ठीक है बच्चों, इसका भी हर आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या समझ गया? यहाँ पे हमने ही हिम और हिस का देख लिया। तो बता, सो इफ यू से सॉरी टू हर आएगा अगर हम लेडी के बारे में बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ woman, but here we are talking about a man, so we are saying him. Okay, so what did we understand? Our teacher is very kind. If you say sorry to him, यानी कि we are talking about a male teacher, अध्यापक के बारे में बात कर रहे हैं। So if what are they saying? If you say sorry to him, he would, देखिए ही इस्तेमाल हुआ ना, he और him का इस्तेमाल किया। He would forgive you, he would forgive you। तो क्या forgive का मतलब? माफ करना। तो कोई भी आपसे अगर आके सॉरी बोलते हैं तो यू forgive them, बड़प्पन दिखा के आप उनको forgive कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा? Meethi says our teacher is very kind. If you say sorry to him, he would forgive you. So for that, you know what does Ravi say? क्या बोलेंगे जब किसी ने आपकी मदद की, कोई सलाह दिया आपको, जो उपयोग हुआ उसका सलाह का, तो what do you say? You say, come on, tell me in the chat box. You know this. Come on. Very good. You use the magic word. Thank you. So Ravi used the word thank you. And what do you say? Whenever you say thank you, try to mention the name or the designation. So thank you, Meethi. Thank you, Meethi, for giving me such a good advice. So what happened? So thank you, Meeti, for giving me such a good advice. So we finished the lesson so far. So who and all were there? कोई कौन कौन था lesson में? Who and all were there? Tell me. Who was there? There was Kabir, there was Meeti, there was Ekta, Ravi. ठीक है? There were 4 people. Okay, how many people? 4 people. Okay, so what did you understand here? What did you understand here? This is called as your lesson is over, and we understood the teacher is a male, right? And we understood also that when you talk about a male teacher, you use him, and if you talk about a female teacher, you use her. We understood the word uprooted. Uprooted का क्या अर्थ है बच्चों? क्या अर्थ है बच्चों? It is जड़ से उखाड़ना। सैपलिंग एज इन छोटा पौधा। तो टुमारो और एस्टरडे का दोनों का अर्थ कल ही होता है। सो व्हाट डिड वी लर्न? वी यूज द मैजिक वर्ड्स। What would we learn? We learned the words magic words. Okay, so we were talking about pronoun. ओके, प्रोनाउन यानी कि जब हम कोई नाउन, यहाँ पे हमने नाउन के बारे में पढ़ा था बच्चों, याद है आपको? यहाँ पे नाउन क्या है? टीचर। टीचर एक नाउन है। तो टीचर को सब्स्टिट्यूट करके, टीचर के बदले यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं? आवर टीचर इज वेरी काइंड। इफ यू से सॉरी टू टीचर, टीचर वुड फॉरगिव यू। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? आवर टीचर इज वेरी काइंड। इफ यू से सॉरी टू टीचर, ही वुड फॉर ही नहीं, टीचर वुड फॉरगिव यू। तो टीचर कितने बार लिखना पड़ जाता था? 1 2 3, 3 बार आपको रिपीट करना पड़ता था।
दोहराना पड़ता है, टीचर टीचर टीचर। अगर आप रवि के बारे में बात कर रहे हैं तो रवि हैज अ बुक, रवि लाइक टू प्ले, रवि लाइक्स टू ईट कर्ड राइस। तो आप क्या कह सकते हैं, रवि को 3 बार दोहराने के बदले, रवि के बदले में, रवि के बदले आप एक प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों? प्रोनाउन का उपयोग कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों? प्रोनाउन के इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। क्या करता है प्रोनाउन? नाउन को रिप्लेस करता है। तो अभी हम थोड़े प्रोनाउन के बारे में थोड़े बारे में बात कर ले बच्चों। वेरी गुड। चलो, तो आपको याद है कल पिछले क्लास में ने क्या बोला था? आई एम को दो तरह, आई एम और आई वॉज, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा प्रोनाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों अभी हम? प्रोनाउन। सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज अ नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि एक चीज को नाम देता है। लाइक टीचर, डॉग, जगह का नाम मुंबई, ठीक है, वस्तुओं का नाम जैसे पेन। तो इस प्रकार नेम किसी का नाम, यानी कि जैसे कि रवि, ठीक है। तो इस प्रकार ये होता है नाउन। व्हाट इज इट? दिस इज नाउन। तो नाउन के बदले अगर एक ही सेंटेंस में नाउन 3-4 बार आ रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने देखा था, ऐसे लिखा था, आवर टीचर इज वेरी kind. If you say sorry to teacher, teacher would forgive you. Okay? तो यहाँ पे देखा आपको कितने बार टीचर दोहरा रहा है, यहाँ पे कितने बार आ रहा है? 1, 2, 3 बार आ रहा है। तो यह जो नाउन है उसको सिर्फ एक बार लिख के, यहाँ पे हमारा टीचर जो नाउन है उसको सिर्फ एक बार लिख के, बाकी बार जो दूसरे बार जो आ रहा है उसमें हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो प्रोनाउन का काम क्या काम है? व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन replaces a pronoun replaces a noun. So my dear kids understood what is work of a pronoun? It replaces a noun. So pronoun में तरह तरह के pronoun हैं, subject pronoun, possessive pronoun करके बहुत सारे type of pronoun हैं। तो अभी मैं थोड़े pronoun आपको सिखाती हूँ, आप थोड़ा देखिए। तो subject pronoun, तो आप कैसे कर सकते हैं पता है? ही को, जैसे हमने देखा, ही को आप हिम, हिस कह सकते हैं। हिम और हिस जब आप उसके चीज के बारे में, हिज शर्ट, हिज टॉय, उसके पास जो चीज है उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम हिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप जब टीचर को ही डाल सकते हैं, हिम डाल सकते हैं या हिस डाल सकते हैं। अभी ही कब डालना है, हिम कब डालना है और हिस कब डालना है हम देखेंगे। ठीक है, तो जब आवर टीचर इज वेरी काइंड, इफ यू से सॉरी टू ही नहीं आएगा, हिम आएगा। जब उसके बारे में बात कर रहे हैं तब हम हिम कहेंगे। ओके, और टीचर क्या करेंगे यहाँ पे? टीचर वुड फॉरगिव यू, ही वुड फॉरगिव यू आ रहा है। ओके बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि किस प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ही इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, और ये जो हिम है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, और ये क्या है? हिस क्या आता है? पोसेसिव प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन में ही अलग अलग के चीजें हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन में ही है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? हिम होता है, और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों?
एक मिनट, पोसेसिव प्रोनाउन होता है हिस। ठीक है बच्चों, तो ये आप थोड़ा अभी इंट्रोडक्शन दे दिया है, परंतु इसके बारे में डिटेल क्लास जो है अगले क्लास में लेंगे, प्रोनाउन के बारे में सीख लेंगे। तो हमने जो ग्रामर किया था, जब आपने पार्ट 1 में जो ग्रामर किया था, हमने नाउन्स के बारे में सीखा था। वी लर्नड अबाउट नाउन्स व्हिच आर नेमिंग वर्ड्स। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रोनाउन which is also part of speech in the next class. Okay, we learn about pronouns and also do your book back exercises. Okay kids, so make sure you are very attentive in the next class, because we are going to learn about pronouns and do your book back exercises. So until then we will finish today's class. Until then, jai vidya shakti, jai hind, jai bharat bachcho. Thank you Ganesh sir.